वसुदेवदेव। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्माय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत गीता दिव्य ज्ञान जगत चतुर्थोध्याय। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्। मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। अनुवाद। ଯେଉଁମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ମୋର ଶରଣରେ ଆସନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରେ। ହେ ପାର୍ଥ ପୃଥା ପୁତ୍ର, ସମସ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରକାର ମୋ ପଥ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଭାବାର୍ଥ। ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶର ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରତୀତି ଯଥା ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପରମାତ୍ମା କୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରତୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପରମାତ୍ମା ଜରିଆରେ ସେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଫଳତଃ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ବସ୍ତୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି କାମନା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କାମନା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବନାରେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କୌଣସି ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରେ, ଆଉ କେହି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରେ, ଆଉ କେହି ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରେ ଏବଂ ଆଉ କେହି ପ୍ରେମିକ ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତର ପ୍ରେମ ବା ଭାବର ତୀବ୍ରତା ଅନୁଯାୟୀ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ବା ଆରାଧନାକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ବା ଆରାଧନାକାରୀର ଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଉଭୟତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସତ୍ତାକୁ ହରାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଫଳତଃ ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ହରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରୁ ମିଳୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ରହି ନ ପାରି ପୁଣି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଫେରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୌତିକ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାର କାମନା ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ତାହା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ପୁଣି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଫେରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସକାମ କର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ହିସାବରେ ଇପ୍ସିତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗସିଦ୍ଧି କାମନା କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ କାମ ହେବା
निमित्त तांकर कृपा उपरे निर्भर करती। विभिन्न प्रकार साधन विधि आउ किछि नुहे, सेगुड़िक सेही गोटिए पथरे सफलता लाभर विभिन्न प्रकार स्तर। तेणु व्यक्ति कृष्ण चेतना रूप सर्वोच्च सिद्ध स्तर को न आसवा पर्यंत तार समस्त प्रचेष्टा अपूर्ण रही जाए। तेणु श्रीमद् भागवत में कहुछि अकाम सर्वकाम बा मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति जोगेन जजत पुरुषम परम। अर्थात भक्त जेपरी होइना होई थाउना कहीं से अकाम होई थाई पारे, अर्थात तार कौन सी कामना न थाई पारे किंबा समस्त कर्मर फल उपभोग करने इच्छा थाई पारे। से जहाँ हेउना कहीं पूर्णता प्राप्ति निमित्त ताकू परम पुरुष भगवान को आराधना करने समस्त प्रकार चेष्टा करने पड़ो। ए पूर्णता प्राप्ति परिणामतः कृष्ण चेतना ही पर्यावर्षित हो। अर्थात कृष्ण चेतना स्तर बा भक्तियोग स्तर होउछि सर्वश्रेष्ठ स्तर। यही स्तर को समस्त को शेष आसवा पड़ो। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तंथैव भजाम्यहम् मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्मज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है और इसी तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्त के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिसी तरह की भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियाँ होती है और वह विभिन्न प्रकार के भक्त के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इसी तरह वो उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। फलतः वो अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वो अपनी
कार्यों करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें योगेश्वर के रूप में उनके कर्म का वांछित फल देते हैं। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्द में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियों है। अतः जब तक कोई कृष्ण भावना मूर्ति की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अकाम सर्वकाम वा मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति जोगेन जगत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पुण्य सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावना मूर्ति में होता है।